अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं जून 2022 का पास्ट पेपर और उसमें अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3। हमने क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू किया और ओवरव्यू डिस्कशन की हमने, और उसके बाद क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को हमने देखा। अब हम क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करेंगे मिलके। जैसा कि हमने ओवरव्यू में डिस्कशन की कि क्वेश्चन 3 इज़ अबाउट CAPM एंड वैक प्राइमरीली, और उसमें थोड़ा सा एक पार्ट आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का भी है। ये भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। हम अभी देखेंगे, इसे अटेम्प्ट करेंगे मिलके। मैं पहले से रीड कर रहा हूँ और जैसा कि हमारा तरीका एक कार है, जब मैं रीड कर लूँगा उसके बाद आप इसे खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते जाएंगे, फिर हम इसे मिलके सॉल्व करेंगे। तो मैं ये रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन 3। Centaurus Pakistan Limited is a manufacturer of ready-to-cook and ready-to-eat frozen foods based close to Rawalpindi, Pakistan. The company was founded by Ayman and Arisha Khan in 2012. Although the company is listed on the Pakistan Stock Exchange, the founders still own a large proportion of the equity share capital, and until recently the company was all equity financed. The manufacturing process involves a blast freezing technique that freezes products quickly in order to retain the freshness and quality of the foods produced. Consumer demand for such convenience food has increased significantly in recent years. CP has found it difficult to grow the business due to constraints in the distribution network. Distribution network की limitations इन्हें hold कर रही हैं from growing, both in terms of the cold transport and also in terms of suitable retail outlets for consumers to purchase goods. आपकी अपनी कोई retail outlets नहीं है, फिर cold supply chain नहीं है, जिसकी वजह से आपको मुश्किल हो रही है growth के अंदर। इसमें यानी limitations हैं, constraints हैं। Therefore, in 2021, the board embarked on an ambitious growth strategy that would remove the constraints on growth. Phase 1 of the strategy has been completed, which comprised of the acquisition of a cold transport logistic company. The acquisition was funded through an injection of new equity finance, bringing CP's equity value to rupees 48 billion, and new debt finance with the issue of new 3% corporate bonds of rupees 15 billion. These bonds are redeemable in June 2032 at a 10% premium. यानी अगर हम अज्यूम करें आज जैसे कि ये जून 2022 का पेपर था, तो लेट से आप जून 22 में खड़े हुए हैं और जून 2032 में यानी 10 साल बाद ये बॉन्ड्स रिडीमेबल हैं एट अ 10% प्रीमियम, राइट। ये 3% बॉन्ड्स हैं, 3% का मतलब इनका कूपन रेट 3% हो गया, 15 बिलियन की इनकी नॉमिनल वैल्यू हो गई। 10 साल के बाद इनकी रिडेम्पशन है और रिडेम्पशन इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. The corporate bonds are currently AAA credit rated. Okay, CP is now ready to commence. So phase 1. Phase 1 के एंड पे आपके पास क्या है? आपके पास इक्विटी है रुपीज 48 बिलियन की। आपने बॉन्ड्स इशू किए हुए जिनकी फेस वैल्यू है रुपीज 15 बिलियन, और वो 3% कूपन रेट, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम इन 10 years। ये है हमारे पास डेटा अभी तक। अच्छा जी, और ये बॉन्ड्स क्या है? ये AAA रेटेड बॉन्ड्स हैं। इनकी क्रेडिट रेटिंग हेल्प करती है आपको मार्केट रेट असेस करने में। वी ऑल नो दिस। अच्छी क्रेडिट रेटिंग का मतलब आपको लोअर रेट की डेट मिलती है, और लोअर क्रेडिट रेटिंग का मतलब आपको हायर रेट पे फिर क्रेडिट डेट मिलती है। CP is now ready to commence phase 2 of its expansion plan, which involves raising rupees 20 billion of debt through a bank loan for acquiring the equity of a small chain of retail outlets. आपकी दो कंस्ट्रेंट्स आपको महसूस हो रही थी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। एक कोल्ड ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके लिए आपने एक कंपनी ट्रांसपोर्ट की अक्वायर कर ली, कोल्ड ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी। दूसरी आपको रिटेल साइड पे कंज्यूमर्स को हैंडल करने में कंस्ट्रेंट आ रही थी, जिसके लिए अब आप जा रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू अक्वायर
a small chain of retail outlets. The retail outlets will stock CP's inventory on an exclusive basis once acquired. जैसे ही acquire कर लेंगे आप अपनी inventory वहाँ रखेंगे और वो भी exclusive basis पे होगी. A suitable all equity company has been identified. जो आपकी target company identify की है वो all equity है. However, the acquisition is considered to be quite risky as the target company's ungeared beta is 2.23, which is greater than CP's most recently quoted equity beta of 1.25. इस वक्त आपका बीटा इक्विटी यहाँ पे है कितना 1.25 फेज 1 के एंड पे, राइट. फेज 2 के लिए जो कंपनी आप अक्वायर करने जा रहे हैं उसका बीटा इक्विटी भी वही होगा, बीटा एसेट भी वही होगा, क्योंकि वो ऑल इक्विटी कंपनी है और वो है 2.23, विच इज़ डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग अ हायर रिस्क, क्योंकि इसकी जो बीटा की वैल्यू है सिग्निफिकेंटली हायर है. You should assume that the cost of new debt finance is same as the cost of its existing corporate bonds obtained in phase 2. तो phase 2 मैं डेटा सारा ऐसे नोट कर रहा हूँ या आप एक बार नोट करके रख लें ताकि हमारे पास रेफरेंस के लिए आसानी हो. phase 2 को हम फाइनेंस करेंगे वाया बैंक लोन और उसकी जो डेट की वैल्यू होगी वो है ₹20 बिलियन, राइट. अच्छा जी, और जिस कंपनी को हम अक्वायर करने जा रहे हैं उसका जो बीटा है वो है 2.23. तो नेचुरली हमारी ओवरऑल जब हम उसे अक्वायर कर लेंगे तो हमारी ओवरऑल कंपनी का भी बिजनेस रिस्क बढ़ जाएगा एंड सो हमारा अपना भी बीटा इक्विटी भी एसेट भी चेंज हो जाएगा, बीटा इक्विटी भी चेंज हो जाएगा वंस वी एक्वायर इट, बिकॉज हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस की जो यानी आफ्टर द फेज़ 1 हमारी जो बीटा इक्विटी है इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी है, इसके अंदर ये एग्जिस्टिंग जो डेट इक्विटी रेशो है इसका रिस्क भी होगा. तो वो है 1.25. जब हम एक नई कंपनी एक्वायर कर लेंगे जिसका बीटा एसेट है 2.23 तो फिर उसके बाद हमारी कंपनी का ओवरऑल बिजनेस रिस्क भी चेंज हो जाएगा और फिर ऑफकोर्स फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा क्योंकि हम मज़ीद डेट ले रहे हैं तो हमारी सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी. अच्छा जी, बेटा ये चेक कीजिएगा कि वॉइस सही रिकॉर्ड हो रही है. ज़रा इसको चेक भी करते जाएं ताकि ऐसा ना हो कि हम रिकॉर्डिंग करें. चल रही है, चलें ठीक है. The relevant arbitrage pricing theory factors are shown below together with their appropriate beta weighting. वो क्या है? अच्छा, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं एज कम्पेयर टू CAPM. ये क्या है? The relevant arbitrage pricing theory factors are shown below together with their appropriate beta weighting. Beta 1 industry risk, Beta 2 gold prices, Beta 3 economy risk, Beta 4 inflation. Indicators given है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसका मार्केट प्रीमियम है 7, इसका बीटा है 1.16, तो बीटा 2 है वो 1.15 है और उसका रेलिवेंट रिस्क प्रीमियम है उस फैक्टर का 2%. फिर इकनॉमी रिस्क है 4%. ये पूरा टेबल बना हुआ है. और चौथा इन्फ्लेशन है, इसके रिस्क प्रीमियम और बीटा सारे गिवन है चारों फैक्टर्स के. अभी हम डिस्कस कर लेंगे, रिफ्रेश भी कर लेंगे व्हाट इज़ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी एंड हाउ डज इट डिफर. ये हमारा क्वेश्चन भी है CAPM से कंपैरिजन में, यो ना ये दोनों CAPM और APT का डिफरेंस भी हम अभी डिस्कस कर लेंगे. पाकिस्तान कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज़ 29%. द एवरेज मार्केट रिटर्न ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ 10% एंड रिस्क फ्री रेट इज़ 4%. तो हमें जो डेटा गिवन है उसमें हमें बताया गया है टैक्स रेट इज़ 29%, RF रिस्क फ्री रेट इज़ 4% और RM जो है जो हमारा ट्रेडिशनल स्टॉक एक्सचेंज का है वो है 10%, राइट. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स BD बीटा डेट भी हमें बताया गया है एट डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग इज एज फॉलोज. AAA क्रेडिट रेटिंग है तो बीटा D 0 है. तो इफेक्टिवली अगर हमारा ये बॉन्ड है, ठीक है, तो बीटा D 0 है तो जो RF है वही हमारा KD प्री टैक्स हो गया ना, तो वो 4% हो गया क्योंकि दिस डेट इज रिस्क फ्री अज्यूम की जाएगी और इसका जो बीटा डेट है वो 0 है तो जो RF है वही हमारी प्री टैक्स KD है. तो इफेक्टिवली मार्केट रेट इस डेट का 4% है. अगर रेटिंग AAA से A हो जाए तो फिर बीटा D 0.25 हो जाएगी, तो फिर नेचुरली आपकी डेट की का जो KD है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी. अच्छा जी, मैं APT को डिस्कस करूँगा क्योंकि इसका एक पार्ट है पार्ट B जिसमें APT है, तो उसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे. पहले हम रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं. रिक्वायरमेंट A, कैलकुलेट द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल बॉन्ड्स एंड CP's ओवरऑल गियरिंग रेशियो यूजिंग मार्केट वैल्यूज.
आफ्टर फेज 1 ऑफ इट्स एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। वो क्या कह रहा है कि आप मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालें और सीपी की ओवरऑल गियरिंग बता दें आफ्टर फेज 1। तो बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू के लिए हमें प्री टैक्स केडी गिवन है, यानी हमें आरएम जो मार्केट रेट है, यूं कहिए मार्केट रेट या प्री टैक्स केडी, वो हमें गिवन है, वो है 4%। तो हम इन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकालेंगे, इक्विटी की मार्केट वैल्यू पता है, उसकी बेसिस पे हम क्या कर लेंगे, उसकी बेसिस पे हम गियरिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो पार्ट ए इज़ वेरी वेरी इजी। तो आइए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं पार्ट ए का। पार्ट ए, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर अ फेस वैल्यू इक्वल टू 100, अगर हम देखें तो ये 10 साल का बॉन्ड है, रुपीज फेस वैल्यू 100, तो कूपन क्या है, कूपन इज 3 है फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ 100, राइट। रिडेम्पशन क्या है, रिडेम्पशन आफ्टर, अच्छा ये पर एनम हमें 3 मिलेगा। रिडेम्पशन है हमारी एट प्रीमियम, तो 100 के अगेंस्ट रिडेम्पशन एट 10% प्रीमियम, सो दिस बिकम्स 110। चूँकि हमें प्री टैक्स रेट गिवन है तो हमारा तरीका कार क्या है, अगर हम प्री टैक्स रेट या प्री टैक्स केडी गिवन है तो हम प्री टैक्स कैश फ्लोज बनाते हैं, उसे प्री टैक्स रेट से डिस्काउंट करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी विल एंड अप एट द मार्केट वैल्यू। से डिस्काउंट करेंगे प्री टैक्स रेट से। अच्छा, इसकी डिस्काउंटिंग होगी, ये पर एनम है फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 10, तो हम इसे एन्युटी से डिस्काउंट करेंगे और इसको हम डिस्काउंट करेंगे 1.04 पावर 10 से, राइट। अच्छा जी, तो अब मैं इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस 1.04 पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 0.04, ये इन 10 सालों की प्रेजेंट वैल्यू हो गई, 10 कूपन इंटरेस्ट अमाउंट्स की, प्लस कर दें इसमें 1,10,000 डिवाइड बाय 1.04 पावर 10, तो ये आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। लेट्स कैलकुलेट दिस। 1.04 पावर माइनस 10, 1 minus this divide by 0.04 multiply by 3 plus 110 divide by 1.04 power 10, तो ये क्या फिर 98.65, ये बन गई 98.64 समथिंग है, तो 98.6 पे मैं रुक जाता हूँ। 98.644 है तो 98.6, भाई डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया, तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी, टोटल मार्केट वैल्यू यानी डी बन जाएगी आपकी 15 बिलियन डिवाइड बाय 10 इंटू 98.6 करें आप, तो क्या फिगर बनती है, 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 98.6 इज 14.79 यानी 14.8। तब अगर हम देखें हमारे पास डेट हो गई 14.8 रुपीज़ इन बिलियन, ऑफ कोर्स इक्विटी की वैल्यू है 48 बिलियन, टोटल बन गया ये अगर हम करें 14.8 प्लस 48 62.8, राइट। तो हमारी गियरिंग रेशो क्या बन जाएगा, गियरिंग रेशो हम निकाल लेते हैं, 14.8 डिवाइड बाय 62.8, दिस बिकम्स 23.6%, द रेस्ट इज़ ऑफ कोर्स 76.4 बन जाएगी हमारी इक्विटी और डेट बन जाएगी 23.6। सो दिस इज़ द गियरिंग रेशियो आफ्टर फेज़ 1 ऑफ द एक्सपेंशन। ये मार्केट वैल्यू बन गई और ये बन गया इसकी बेसिस पे हमारा गियरिंग रेशियो। तो पार्ट ए जो कि छोटा सा नन्ना सा पार्ट है 2 मार्क्स का, उसे हमने आराम से कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक आप पहुँचे, सो आसान। फिर है हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट, पार्ट बी, जिसमें एपीटी का भी जिक्र है और जिसमें सीएपीएम का भी जिक्र है। मैं रीड कर लेता हूँ, यहाँ तक आप पहुँचे, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, फिर हम पार्ट बी करेंगे। कि कैलकुलेट CP's cost of equity using the arbitrage pricing theory and capital asset pricing model and briefly explain the difference in your answers. Before we embark on the second phase, इस वक्त cost of equity हमारी क्या है हम ये फाइंड आउट करते हैं arbitrage pricing theory से भी और CAPM से भी, और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंसेस को।
फिर उसके बाद लॉजिकल पार्ट सी है जो कहता है कि कैलकुलेट वैक बिफोर एम्बार्गिंग ऑन फेज़ 2 एंड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेटेड वाया CAPM। तो अभी हम फेज़ 2 की बात ही नहीं कर रहे, फेज़ 1 पे ही खड़े हैं हम। फेज़ 1 के एंड पे ये गियरिंग रेशियो है, ये डेट की वैल्यू है। अब हम निकालते हैं अपनी KE और फिर निकालेंगे वैक। अच्छा जी, तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM। CAPM तो हमारा पढ़ा ही हुआ है। CAPM मॉडल के थ्रू हम पार्ट बी कर रहे हैं। KE पहले करते हैं वाया CAPM, फिर मैं डिस्कस करता हूँ APT को। CAPM मॉडल कहता है KE इज इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा इक्विटी, राइट। हमारे पास RF गिवन है 4 प्लस RM इज 10 माइनस 4 इंटू बीटा इक्विटी इज़ 1.25। तो ये करें तो हमारी KE क्या आ जाती है 6 इंटू 1.25 प्लस 4 तो ये 11.5% बन गई। अच्छा जी, अब आइए ये जो APT है, APT आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी इज एक्चुअली, ये स्टीफन रॉस एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एज एन अल्टरनेट टू CAPM ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल दिया। उनका कहना ये था कि जो CAPM मॉडल है ये कहता है कि the return that an investor should get or an asset should offer comprises of two parts. One is the risk-free rate, the other is the premium for systematic risk, and that premium is calculated with reference to the market premium. और फिर आपकी volatility with respect to the market, यानी your systematic risk as compared to the market risk, ये उसका रेशियो है बीटा। तो इसको हम कहते हैं, APT कहती है इट्स अ सिंगल फैक्टर मॉडल, यानी आपके जो इन्वेस्टर को रिटर्न रिक्वायर्ड है ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, तो वो जो प्रीमियम फॉर रिस्क है CAPM उसको एक ही बेसिस पे बकेट पे कि भाई मार्केट को इतना प्रीमियम मिल रहा है उसकी बेसिस पे जो है वो कैलकुलेट कर रही है। APT कहती है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर शुड गेट और एन एसेट शुड ऑफर, है ना, वो ना सिर्फ RF के साथ मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और मल्टीपल फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और कंपनी स्पेसिफिक भी होते हैं। अब अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट करते हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट पे आता है और कंपनी की प्राइसिंग पे और उसके इक्विटी रिटर्न्स पे आता है, राइट। भाई डेट की कॉस्ट बढ़ती है, उसका एक रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है कंपनी पे, स्टॉक मार्केट पे भी अगर आपके मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। सिमिलरली कमोडिटीज़ की अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं, मेटल प्राइसेस बढ़ती हैं, उसका एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट सिग्निफिकेंटली ऊपर नीचे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसका आपकी कंपनी की इक्विटी परफॉर्मेंस पे भी उसका भी इम्पैक्ट आता है, यानी आपके एसेट के रिटर्न पे उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट चीज़ें, ना सिर्फ जस्ट कि आप एक फैक्टर को कहें, तो ये मॉडल कहता है कि आप एक बीटा 1 इंटू एक रिस्क, जो भी आपका एक फैक्टर है, लेट सपोज करें वो फैक्टर को हम कहते हैं R1 माइनस RF, राइट। तो ये एक फैक्टर हो गया जिसका रिटर्न, यानी ये रिस्क प्रीमियम ऑफ दैट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय दी वॉलेटिलिटी, कंपनी के रिटर्न उससे कितने वॉलेटाइल हैं एज कम्पेयर टू दैट फैक्टर। जैसे यहाँ हम कह रहे हैं कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क एज कम्पेयर टू मार्केट रिस्क, तो ऐसे ही ये वॉलेटिलिटी आपने यानी बीटा फाइंड आउट किया ऑफ दैट फैक्टर, और फिर वो फैक्टर कितना प्रीमियम ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट ऑफर कर रहा है। सिमिलरली it should be beta 2 into R2 minus RF plus beta 3 into R3 minus RF and so on, beta N Rn minus RF। APT को हम इसलिए कहते हैं इट्स अ मल्टी फैक्टर मॉडल that takes into account different factors and their risk premiums over and above the RF। वो फैक्टर्स जो कंपनी के या एसेट के, किसी भी एसेट के रिटर्न को अफेक्ट करते हैं, आप उन सब का मल्टीपल, so the return that an investor should get or an asset should offer is not a function of only one, आप कहें फैक्टर या वेरिएबल over and above the risk free rate, it is, ये मॉडल कहता है कि मल्टीपल फैक्टर्स प्ले देयर पार्ट जिसका इम्पैक्ट आता है किसी भी एसेट के रिटर्न के ऊपर।
अब वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इस पर कोई कंसेंसस नहीं है, लेकिन इसने एक थ्योरी ने हर एसेट के लिए वो डिफरेंट हो सकते हैं। किसी एक कंपनी पे मल्टीपल ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी पे कम हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट, बट मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, है ना। कंपनी की अपनी जो है ना साइज़ और उसकी बेसिस पे भी उसके जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑपरेशंस, तो वो डिपेंडिंग ऑन दैट डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट द कंपनी, राइट। तो कहने का मकसद ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये कह रही है कि द रिटर्न दैट एन एसेट शुड गेट ओवर एंड अबव द आरएफ is a function of not just one factor which is the market premium और systematic risk जो कंपनी का है उसका ratio with the market risk। ये एक फैक्टर की जगह ये मॉडल कहता है there are multiple factors जिनका इम्पैक्ट है कंपनी के रिटर्न के ऊपर या किसी भी एसेट से जो रिटर्न मिलना चाहिए उसके ऊपर। सो इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी की हमारी बहुत है, ठीक है। और इस क्वेश्चन ने क्या किया है, इस क्वेश्चन ने इस कंपनी के लिए जो कि हमारी अपनी कंपनी अंडर सेंटोरस के लिए उन्होंने बता दिया है कि रेलेवेंट आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी फैक्टर्स क्या हैं। इंडस्ट्री का रिस्क है, गोल्ड प्राइसेस हैं, इकोनॉमी रिस्क है, जो जीडीपी, अच्छा हाँ, इकोनॉमी की साइज़, जीडीपी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी, जीएनपी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन रेट जैसे मैंने कहा, कमोडिटी की प्राइसिंग होती है, फिर अपनी आपकी जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस मार्केट का अपना रिस्क भी है, सब मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के से रेलेवेंट 4 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं, चारों का बीटा बताया गया है, और रिस्क प्रीमियम यानी R1 माइनस RF, R2 माइनस RF, R3 माइनस RF, R4 माइनस RF बताया है इसने। तो अब अगर हम इनको पिक कर लें तो बहुत ही आसान है। तो हमारी KE बेस्ड ऑन APT वुड बी 4 प्लस 1.16 इंटू 7 प्लस 0.15 इंटू 2 प्लस 0.22 इंटू 4 प्लस 0.06 इंटू 3। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करके इन सब का सम कर लें, इंडिविजुअल फैक्टर्स की कैलकुलेशन ये कर लें, 1.16 इंटू 7 प्लस 0.15 इंटू 2 प्लस 0.22 इंटू 4 प्लस 0.06 इंटू 3 और फिर इसमें 4 ऐड कर दें तो ये बन गया 13.48%। तो बेस्ड ऑन द आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, राइट, जो है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होनी चाहिए 13.48 और एज पर CAPM इट शुड बी 11.5। अब ये हर फैक्टर का बीटा ये बता रहा है कि इस फैक्टर का रिस्क प्रीमियम ये है 7 और आपकी कंपनी की जो कोरिलेशन है विद दैट फैक्टर वो ये बीटा क्वांटिफाई करता जा रहा है, राइट, 0.15, 0.22 एंड सो ऑन, ठीक है जी। हाउ डज दैट रिस्क फैक्टर अफेक्ट योर एंटिटी, वो फिर बीटास के थ्रू आप फाइंड आउट आपने किया हुआ है। तो उसने पूरा डेटा हमें दिया हुआ है। ऑल वी नीड टू डू इज़ टू, अगर हमें APT का थोड़ा सा आइडिया है तो हमने सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन करनी थी। सो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर APT कम्स आउट टू बी 13.48। सो द क्वेश्चन सेज कि डिफरेंस, ये भी इसका पार्ट है, उसमें आप यही बात लिख सकते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग APT एंड CAPM एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंस। डिफरेंस में आपने यही बात करनी है कि जी CAPM मॉडल जो है वो थोड़ा सिंपलर मॉडल है। ये मॉडल कहता है दैन रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर शुड गेट ओवर एंड अबव, किसी भी एसेट से इज ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रेट, और प्रीमियम, और उसमें रिस्क फ्री रेट के ओवर एंड अबव क्या है, इज अ प्रीमियम फॉर सिस्टमैटिक रिस्क एंड दिस मॉडल कैलकुलेट सिस्टमैटिक रिस्क का प्रीमियम जो है बेस्ड ऑन द मार्केट एज अ होल, है ना। so this is a single factor model in contrast with that जो APT है वो the multi factor model। ये मॉडल कहता है कि then the return that an asset should offer, है ना, comprises of not just the RF but plus the premium for various risk factors। यहाँ तो premium for systematic risk और उसको हम एक market से compare कर रहे होते हैं, market portfolio से। ये मॉडल कहता है it's a multi factor model और ये जो है कहता है कि आपकी जो रिटर्न मिलना चाहिए वो हर फैक्टर्स का प्रीमियम जो भी अफेक्ट कर रहा है कंपनी के एसेट के रिटर्न को, उसका प्रीमियम और उससे रिलेटिवली हाउ इज़ योर एसेट रिलेटेड टू दैट फैक्टर, वो बीटास के थ्रू आप मेजर करें। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, इस पर कोई यानी कंसेंसस नहीं है कि हर कंपनी के ऊपर जो है
ये 4 फैक्टर्स होने चाहिए या 5 फैक्टर होने चाहिए, इट वेरीज. सो डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक एंड कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स प्ले देयर पार्ट. वो फिर आप अपनी जो है ना कंपनी के परस्पेक्टिव से असेस करें. So it's difficult to calculate. First, identify what are the factors that affect the return of a particular company. What macroeconomic factors, GDP कितना affect कर रही है, inflation कितना कर रही है, exchange rates कितना कर रहे हैं, commodity prices कितना कर रही हैं, interest rates कितना कर रहे हैं. ये जनरली बड़े बड़े factors होते हैं. तो ये पहले आप फाइंड आउट करेंगे, फिर अपनी कंपनी का बीटा फाइंड आउट करेंगे, है ना, फॉर ईच फैक्टर, और फिर आप एपीटी की कैलकुलेशन कर लेंगे. सो एपीटी का कॉन्सेप्ट ठीक है, बट कैलकुलेशन इज़ नॉट इजी, इट्स डिफ़िकल्ट. सो ये जो है हम इस डिफरेंस में लिखेंगे. सो फ्रॉम 4 मार्क्स परस्पेक्टिव, 2 मार्क्स से 3-2.5 मार्क्स आपकी कैलकुलेशन के, 1 से 1.5 मार्क की डिस्कशन इज़ गुड इनफ. अब पार्ट सी पे आ जाएं. पार्ट सी कहता है कैलकुलेट अ करंट वैक फॉर सीपी बिफोर एम्बार्किंग on phase 2 of the expansion strategy using the cost of equity from part B calculated using CAPM. अब ये रिक्वायरमेंट क्या है कि हम वैक निकालें और वैक की कैलकुलेशन करते हुए हम केई कौन से यूज़ करें, केई हम ये यूज़ करें. तो अब यहाँ तक आप पहुँचें, फिर मैं इसे मिटाता हूँ, फिर हम वैक कैलकुलेट करते हैं. अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट सी पे, कैलकुलेट करते हैं वैक. अब इसमें वैक की कैलकुलेशन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए. पार्ट सी वैक फेज 1 के एंड पे. इसके लिए हमें ई चाहिए. ई की फिगर गिवन है हमें 48 बिलियन. डी हमने कैलकुलेट कर ली थी 14.8 बिलियन. के ई हमने फाइंड आउट कर ली 11.5. अब के डी चाहिए हमें. के डी कौन सी? पोस्ट टैक्स. प्री टैक्स के डी हमारे पास मौजूद है. हमें पता है हमारी प्री टैक्स के डी क्या है, वो है 4% यहाँ, क्योंकि AAA बॉन्ड्स हैं. AAA बॉन्ड्स का कोई रिस्क प्रीमियम नहीं है, तो जो रिस्क फ्री रेट है वही बॉन्ड का मार्केट रेट होना चाहिए. अच्छा, अब एक तरीका के डी पोस्ट टैक्स करने का ये कि हम सीधा क्या करें, के डी पोस्ट टैक्स इज इक्वल टू के डी प्री टैक्स 1 माइनस टैक्स परसेंटेज इज 1 माइनस 29%. तो ये फिगर क्या बन जाएगी, 4 इंटू 0.71 इज 2.84%. ये भी ठीक है. जब हम इस तरीके से के डी कैलकुलेट करते हैं तो हमारी अजम्पशन क्या होती है कि एनी रिडेम्पशन गेन लॉस इज टैक्सेबल. ये ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है इसके अंदर. दूसरा तरीका के डी निकालने का क्या है कि हमें मार्केट वैल्यू पता है, प्री टैक्स के डी पता है, हम कैश फ्लोस बनाएं, कूपन रेट हमें पता है. प्री टैक्स के डी तो क्या मतलब, कैश टू कूपन रेट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, और हम IRR के थ्रू पोस्ट टैक्स के डी निकाल लें. यानी हम क्या करें, हम कहें अच्छा 0, 1 to 10 और 10th ईयर. हम कहें हमारी मार्केट वैल्यू हमने निकाली थी 98 पॉइंट क्या आई थी, 98.6 समथिंग थी. यस, 98.6. तो मार्केट वैल्यू थी हमारे पास 98.6. हम कहें कूपन इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स ये सारी वर्किंग हम कर रहे हैं फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ 100. कूपन इंटरेस्ट इज 3. टैक्स एट द रेट ऑफ 29%. तो 3 पे क्या टैक्स बन जाएगा, 0.87 बन जाएगा गालिबन. 3 इंटू 0.29 इज 0.87. यस, 0.87. फिर हम कहें रिडेम्पशन की अमाउंट इज़ 110, और हम ये कैश फ्लोज बना के इनका IRR निकाल लें, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज का. 3 माइनस 0.87 इज़ 2.13 पर एनम, और ये 110. अब जब हम ऐसे के डी निकाल रहे हैं पोस्ट टैक्स, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ हमारी अजम्पशन है रिडेम्पशन पे जो गेन लॉस है इज़ नॉट टैक्सेबल. यहाँ हम कह रहे हैं रिडेम्पशन गेन लॉस इज़ नॉट टैक्सेबल. यूँ भी कर सकते हैं, इज़ नॉट टैक्सेबल, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पे आज अगर कोई 98.6 का ख़रीदे
110 पे आखिर में रिडम्पशन मिलेगी, तो ये 11.4 रुपये का जो ये जो मार्केट वैल्यू वर्सेस द रिडेम्पशन वैल्यू का डिफरेंस है, जिसे रिडेम्पशन गेन कहेंगे हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज़ नॉट टैक्सेबल, इस पे हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। अगर हम इस बेसिस पे चलें तो फिर हम IRR निकालें, हमारा जो IRR होगा वही हमारा पोस्ट टैक्स KD होगा। IRR ही हमारा KD पोस्ट टैक्स होगा, वो हम IRR निकालें, वो देखें क्या आता है। और IRR निकालने के लिए हमारा तरीका क्या है, सिंपल एनुअलाइज रिटर्न निकाल लेते हैं हम कि अगर कोई इन्वेस्ट करे 98.6 तो उसे पर एनम क्या मिल रहा है, उसे पर एनम एक कूपन मिल रहा है नेट ऑफ टैक्स 2.13 और उसे रिडेम्पशन गेन मिल रहा है कितना, रिडेम्पशन गेन इज़ 110 माइनस 98.6 ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स डिवाइड बाय 10 कर दिया। जो तरीका है हमारा सिंपल एनुअलाइज रिटर्न निकालने का, 110 माइनस 98.6 इज़ 11.4 डिवाइड बाय 10 इज़ 1.14, तो ये क्या बन गया 1.14 प्लस 2.13 दिस बिकम्स 3.27। ये टोटल रिटर्न पर एनम बन गया। 3.27 डिवाइड बाय 98.6 करें तो क्या फिगर बनती है, 3.3 के आसपास बनती है, 3.3। तो अगर आप KD भी निकालेंगे पोस्ट टैक्स तो ये 3.3 के ही IRR करीब करीब होगा, 3.28 3.32 इस तरीके से। तो राउंड ऑफ करके अगर हम करें 3.3 बनेगा आपका IRR। तो आप इसको भी पोस्ट टैक्स KD ले सकते हैं, इसे भी आप KD पोस्ट टैक्स ले सकते हैं। फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ हमारी जब हमने डायरेक्ट 1 माइनस टी कर देते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ना सिर्फ कूपन बल्कि रिडेम्पशन गेन लॉस भी टैक्सेबल है, यहाँ गेन है ऑफ कोर्स, और यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं रिडेम्पशन गेन इज़ नॉट टैक्सेबल। आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में उन्होंने इस तरीके से किया है, आप ये भी कर सकते हैं, हम नॉर्मली इस तरीके से भी चल सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। दोनों में बहुत कोई मार्जिनल वैक में फ़र्क आएगा, मटीरियल नहीं। तो अगर मैं 3.3 से ही लेके चलूँ और हम देखें हमारा वैक क्या आ गया, तो हम वैक कैलकुलेट करें अगर, तो वैक वुड बी KE इंटू E प्लस KD पोस्ट टैक्स इंटू D डिवाइड बाई E प्लस D। तो अगर हम करें दिस बिकम्स 11.5% इंटू 48 प्लस 3.3% इंटू 14.8 डिवाइड बाय 48 प्लस 14.8, तो क्या फिगर बन गई, इस 9.6% की फिगर बन गई आपके पास, 9.6% का आपका बन गया वैक। और अगर आप 2.84 को लेके चलेंगे तो आपका वैक क्या आएगा वो भी आप कैलकुलेट कर लें। सिर्फ अब 3.3 की जगह 2.84 डाल देंगे आप, तो फिर आ जाएगा 11.5 इंटू 48 प्लस 2.84 इंटू 14.8 डिवाइड बाय 62.8, तो 9 क्या बन गई फिगर, 9.5 की फिगर बन रही है, 9.4 समथिंग, 9.46% यानी 9.5%। तो बहुत कोई मटेरियल फ़र्क नहीं आया, आप यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए पार्ट C, यहाँ तक सब पहुँच जाएं, ये फेज़ 1 की सारी कहानी पूरी हुई। फिर हम आते हैं फेज़ 2 पे। अब आते हैं पार्ट D पे। पार्ट D क्या कहता है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड इक्विटी बीटा फॉर CP आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ फेज़ 2 of the project and calculate revised cost of equity for CP using CAPM। CAPM की बेसिस पे आप रिवाइज्ड KE निकालें। ऑफ कोर्स रिवाइज KE के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड बीटा इक्विटी। तो अब मैं ये मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, पार्ट D, रिवाइज्ड बीटा इक्विटी यानी पोस्ट फेज 2। अब हमारे रिवाइज्ड
बीटा इक्विटी क्या होगा और उसकी बेसिस पे रिवाइज्ड के ई क्या होगी। तो अब आइए, हमारा जो एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी है वो है 1.25। अच्छा, 1.25 दिस के अंदर बिजनेस रिस्क भी है, फाइनेंशियल रिस्क भी है, राइट। फाइनेंशियल रिस्क रिप्रेजेंटेड बाय डी रेशो, हमारी डेट कितनी है, डेट है 14.8 और इक्विटी है हमारी ₹48 बिलियन, राइट। इस बेसिस पे है। तो हम इसकी बेसिस पे पहले क्या निकालें, हम अपना बिजनेस रिस्क अगर निकालें तो हम बीटा एसेट की बेसिस पे बीटा ई इंटू ई डिवाइड बाई ई प्लस टी 1 माइनस टी करके बीटा एसेट निकाल सकते हैं। बीटा डेट वैसे ही 0 है, या क्योंकि अभी तक जो हमारी डेट है वो AAA रेटेड है, तो अगर हम बीटा एसेट निकालें तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, 1.25 इंटू ई इज़ 48 प्लस 14.8 इंटू 1 माइनस 29%। कैलकुलेट करें और बीटा एसेट निकालें, क्या आ गया, 114.8 इंटू is 1.0255 1.0255 क्या आ जाएगा हमारे पास बीटा एसेट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बीटा एसेट आ गया 1.026255 यानी 26, 3 डिजिट तक। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस रिस्क बिफोर यानी एंड ऑफ द फेज 1 पे ऑफ करंट ऑपरेशंस, यूं कह लें, ऑफ सीपी, राइट। अब जो आप न्यू ऑपरेशंस करने जा रहे हैं उनका बीटा एसेट क्या है, जो न्यू ऑपरेशंस आप करने जा रहे हैं उनका बीटा एसेट है 2.23। ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस रिस्क ऑफ न्यू ऑपरेशंस जिनको आप यानी फेज 2, करंट ऑपरेशंस टिल फेज 1। तो अब जो आपका रिवाइज्ड बीटा एसेट होगा पोस्ट फेज 2, उसके 2 हिस्से होंगे, उसमें एक बीटा एसेट ये भी होगा और एक बीटा एसेट ये भी होगा। उसमें बीटा एसेट करंट ऑपरेशंस के फेज 1 तक के भी होंगे और उसके अंदर बीटा एसेट हमारे रिवाइज्ड ऑपरेशन, इसका भी इम्पैक्ट होगा फेज 2 वाले का, राइट। और ये अपनी रेस्पेक्टिव वेटेज की बेसिस पे होंगे, ऐसा ही है ना, इसकी जो रेस्पेक्टिव वेटेज है वो आएगी, फिर इसकी जो रेस्पेक्टिव वेटेज है वो आएगी। इस वक्त जो फेज़ 1 है इसमें टोटल कैपिटल जो डिप्लॉयड है D प्लस E वो कितना है, वो है हमारा टोटल 62.8। इसमें जो हम कैपिटल डिप्लॉय करने जा रहे हैं भले टोटल डेट है लेकिन वो होगा 20 बिलियन। तो प्रोपोर्शनेट टू वैल्यू हमारा बिजनेस रिस्क होगा, यानी हमारे जो ऑपरेशंस होंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 20 बिलियन जब हम ये फेज़ 2 कर लेंगे उसका बीटा एसेट होगा 2.23 और इसका बीटा होगा 1.026। जो रिवाइज्ड होगा उसके अंदर इसका भी प्रोपोर्शन होगा, इसका भी प्रोपोर्शन होगा, वुड बी अ मिक्स ऑफ बोथ। और वो मिक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो उनकी रेस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू के हिसाब से वेटेज होगा। तो जो रिवाइज्ड बीटा इक्विटी फेज़ 2 का होना चाहिए, रिवाइज्ड कंपनी की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी 82.8। तो जो रिवाइज्ड बीटा एसेट होना चाहिए कंपनी का वो होना चाहिए 1.026 इंटू 62.8 डिवाइड बाई 82.8 प्लस 2.23 इंटू 20 डिवाइड बाई 82.8 बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। बीटा एसेट रिप्रेजेंट्स बिजनेस रिस्क, है ना। ऑल एसेट बीटा
तो इस ऑपरेशन की ऑल एसेट कितने हैं 62.8, इस ऑपरेशन के ऑल एसेट्स कितने होंगे वो 20 होंगे। इन दोनों का कंपनी की रिवाइज मार्केट वैल्यू जो पोस्ट होगी फेज 2 82.8 होगी। व्हेन आई से कंपनी की मार्केट वैल्यू मींस डी प्लस ई, यानी ऑल एसेट्स वुड बी इक्वल टू 82.8, ई प्लस डी इज इक्वल टू ऑल एसेट्स। उनमें से इस ऑपरेशन के एसेट 62.8 के होंगे, इसके 20 के होंगे। तो हमारा रिवाइज्ड बीटा एसेट क्या होगा 1.026 into 62.8 divided by 82.8 plus 2.23 into 20 divided by 82.8, तो ये बन गया 1.317 यानी 1.316 ये आ गया रिवाइज्ड बीटा एसिड। अब आप देखिए सजेस्टेड सॉल्यूशन में एक छोटी सी मिस्टेक ये है कि यहाँ जब उन्होंने वेटेड एवरेज किया है तो यहाँ सिर्फ इक्विटी की वैल्यू दे दी है, यानी 48 की फिगर ली है विच शुड बी एक्चुअली 62.8, क्योंकि ऑल एसेट बीटा है, इसमें एसेट प्लस इक्विटी, एसेट प्लस डेट, सॉरी इक्विटी प्लस डेट यानी टोटल एसेट की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशंस है ना। अगर हम देखें तो इन ऑपरेशंस के टोटल एसेट्स कितने होंगे, यानी फाइनेंस बाय डेट एंड इक्विटी 62.8 बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ D&E, और इस ऑपरेशन की जो टोटल वैल्यू है मार्केट वैल्यू वो है 20 बिलियन। तो यहाँ तो हम D की वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ का D हमसे मिस हो गया है सजेस्टेड सॉल्यूशन में, तो उसकी बेसिस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क है, यानी यूँ कहिए एक मिस्टेक है छोटी सी कैलकुलेशन की जो कि आपने नहीं करनी। द करेक्ट वे इज़ कि जब हम रिवाइज बीटा एसेट निकालते हैं तो हम कंपनी की जो डिफरेंट हमारे यूनिट्स होते हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू लेते हैं। व्हेन वी से टोटल मार्केट वैल्यू मींस D प्लस ई। और वैसे भी बीटा एसेट जो है वो ऑल एसेट बीटा है, और ऑल एसेट का मतलब D प्लस ई बोथ। तो अब हम आ गए, जब हमारे पास रिवाइज बीटा एसेट आ गया तो अब हमारे पास हम रिवाइज्ड पोस्ट फेज 2 हमारी रिवाइज्ड इक्विटी हमें पता है वही 48 बिलियन होगी। अब हमारी रिवाइज जो डेट हो जाएगी वो डिफरेंट होगी, वो हमारी 14.8 प्लस 20 हो जाएगी 34.8। टैक्स रेट हमारे पास मौजूद है, टैक्स इज 29%। यूजिंग द सेम फार्मूला अब हम 1.316 यहाँ रखें, बीटा इक्विटी इंटू ई 48 प्लस 34.8 1 माइनस 29% करें तो हमारे पास रिवाइज्ड बीटा इक्विटी की फिगर आ जाएगी पोस्ट फेज 2। तो रिवाइज्ड बीटा इक्विटी निकालें, क्या आ गई आपके पास, तो ये फिगर बन जाएगी 1.99 की बीटा इक्विटी की फिगर आ गई रिवाइज्ड बीटा इक्विटी। चाहें तो आप इसे राउंड ऑफ करके 2 भी कर सकते हैं। तो पोस्ट फेज 2 ऑफ योर ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी आपकी जो है रिवाइज बीटा इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 1.99, जो कि एग्जिस्टिंग कितनी थी 1.25 से बढ़ के 1.99, बिकॉज अब आप के एग्जिस्टिंग ऑपरेशन के साथ एक ऐसे वेंचर में जा रहे हैं जिसका बिजनेस रिस्क ज़्यादा है, तो आपके कंपनी का ओवरऑल बीटा एसिड भी बढ़ गया 1.026 से बढ़ के 1.316 हो गया। और क्योंकि आपके जो ओवरऑल रिस्क ऑफ द ऑपरेशन है बिजनेस रिस्क वो इसका और इसका वेटेड एवरेज रिस्क है 1.3 और उसी की, और आप चूँकि आपकी गियरिंग भी बढ़ गई, दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो आपका बीटा इक्विटी 1.25 से बढ़ के 1.99 यानी 2 पे पहुंच गया। तो अब बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट वी कॉल द रिवाइज्ड KE। Using revised beta equity, you can find out revised KE. Revised KE now would be RF plus RM minus RF into revised beta equity, जिसको आप यहाँ incorporate कर दें। तो RF is 4 plus 10 minus 4 into 2 कर देते हैं, तो आपके पास revised KE क्या आ गई is 6 into 2 12 plus 4 is 16%। 16% की आपके पास रिवाइज्ड KE की फिगर आ गई, राइट।
तो रिवाइज बीटा इक्विटी की बेसिस पे आपके पास रिवाइज्ड के ई आ गई, जो कि 11.5 से बढ़ के अब क्या हो गई, अब आपकी 16 हो गई बेस्ड ऑन CAPM। यहाँ तक पहुँचे तो फिर दो नन्हे से पार्ट्स और रह गए, ई और एफ, उन्हें भी देखते हैं, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सॉरी, पार्ट ई, पार्ट डी हो गया, पार्ट ई। पार्ट ई हम डिस्कस करें अब। Explain with relevant calculations how a change in CP's credit rating from AAA to A may impact the market value of CP's corporate bonds। अच्छा, F से पहले उन्होंने एक E की कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि रिवाइज्ड के E के बाद अब आता है कि रिवाइज्ड वैक निकालें, वो निकालने के लिए वो पार्ट F है। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा कि कैलकुलेशंस करके बताएं कि CP's की अगर क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाए AAA से A, तो मार्केट वैल्यू ऑफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग, चेंज इन क्रेडिट रेटिंग, वो क्या करेगी, वो आपकी KD, प्री टैक्स KD को चेंज कर देगी। आपकी प्री टैक्स KD क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, जिसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्या आएगा, जो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स होंगी वो कम हो जाएगी। तो उसने कहा है कि आप इसको कैलकुलेशंस के थ्रू हमें बताएं। ज़ाहिरी बात है, रेटिंग आपकी ख़राब होगी, AAA से A पे आ गए तो रेटिंग आपकी डिमिनिश हुई, आपकी कम हुई। तो रेटिंग जब आपकी डिटीरियोरेट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ जाती है, और कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ने की वजह का इम्पैक्ट क्या आता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट आपकी कम हो जाएगी। तो अब आइए, बिकॉज रेट एंड मार्केट वैल्यू आर इन्वर्सली रिलेटेड, हम ये कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हमें बताया गया उन्होंने, अगर आप A की रेटिंग पे हैं तो आपका बीटा डी क्या बन जाता है, 0.25। तो आपकी KD क्या हो जाएगी, 4 + 10 - 4 × 0.25। तो क्या बन जाएगी, ये 4 × 6 × 0.25 + 4, 5.5 हो गई। यानी आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 to 5.5। तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज़ हो गई, मार्केट वैल्यू ऐसे ही आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वो आप कैलकुलेट कर लें वैसे ही जैसे हमने पहले की थी, 1 to 10 और 10th ईयर कर लें। रुपीज़ ये पर एनम है फॉर अ फेस वैल्यू ऑफ 100। अब आप जब डिस्काउंटिंग करेंगे या कूपन इज 3, प्री टैक्स रेट, प्री टैक्स कैश फ्लोज, उनको डिस्काउंट करेंगे, रिडेम्पशन 110 पे होनी है इन बॉन्ड्स की, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 110। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, तो हम पर एनम फ्रॉम ईयर 1 to 10 माइनस कैलकुलेट करेंगे PV 1 पॉइंट। अब हम लेंगे 055 रेट माइनस 10 डिवाइड बाय 0.055, इसमें ऐड कर दें 110 डिवाइड बाय 1.055 पावर 10। तो कैलकुलेट करें क्या आ गई PV, जो मार्केट वैल्यू है बेसिकली ऑफ बॉन्ड्स। तो 1.055 10 1 minus this divide by 0.055 into 3 plus 110 divide by 1.055 10, ये बन गई 87, एग्जैक्टली 87.01। तो 87 की मार्केट वैल्यू आ गई, यानी योर मार्केट वैल्यू रिड्यूस्ड will reduce from कितनी थी, 98.6% to 87% पर 100 फेस वैल्यू। अगर आपकी जैसे ही क्रेडिट रेटिंग ख़त्म होगी, योर KD विल इंक्रीज, प्री टैक्स KD विल इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5.5%, और मार्केट वैल्यू विल रिड्यूस फ्रॉम 98.6 to 87%। ये इसका इम्पैक्ट आएगा। अब आइए, सो दिस ये एक छोटी सी फुलझड़ी थी जो उन्होंने बीच में पूछी। उसके बाद बहुत ही आसान सा 3 मार्क्स का ये नन्ना सा क्वेश्चन था। पार्ट F, recalculate WACC for CP after embarking on phase 2 of the project and explain why the WACC has changed। अब इस E की फुलझड़ी के बाद हम वापस आ गए कि अब आपकी रिवाइज्ड के ये है, रिवाइज्ड E और D की वैल्यूज़ हमें पता है। KD के लिए उसने ये कहा था कि बैंक लोन की कॉस्ट आप अज्यूम करें, वो क्या है, यू शुड अज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ द न्यू डेट इज सेम एज द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स।
तो अगर तो ये क्रेडिट रेटिंग चेंज नहीं होती, जो कि हमें नहीं कहा गया कि फ़ेज़ 2 के बाद आपकी क्रेडिट रेटिंग चेंज हो जाएगी, ये तो ऐसे ही पार्ट ई में पूछा गया तो हमने कैलकुलेट कर लिया अगर हो तो क्या होगा। लेकिन हमारी क्रेडिट रेटिंग वही रहती है, तो हमारी के यही के डी थी हमारी, अगर हम निकालें वो 3.3 या 2.84, ये पोस्ट टैक्स, राइट। इक्विटी हमारी वही 48 बिलियन, और अब डी की वैल्यू हो गई 20 प्लस 14.8 यानी 34.8 बिलियन, राइट। With these values we can calculate what would be the post tax WACC. Of course post tax ही WACC है, post tax KE and KD है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हिसाब मैं मिटा रहा हूँ। तो रिवाइज WACC क्या होगा और उस रिवाइज WACC की चेंज होने के रीजंस क्या होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम कैलकुलेट कर लें। रिवाइज्ड WACC जो अब होगा वो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज़ होगा। BKE 16 इंटू 48 प्लस 3.3% इंटू 34.8 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 34.8, क्या फिगर बन गई? ये बन गई 10.66 यानी 10.7%, 10.66% विच इज़ 10.7%। ये हमारा WACC बन जाएगा। हमारा जो WACC यानी WACC विल इंक्रीज फ्रॉम, वो जब हमने 3.3 की बेसिस पे पहले जो WACC निकाला था पार्ट सी में, वो क्या था हमारा? पार्ट सी का जो WACC था वो 9.6 था गालिबन, 9.6%, इंक्रीज फ्रॉम 9.6% टू 10.7%। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन करें रीज़न वाई WACC हैज़ चेंज। तो दो चीज़ें हुई, एक हमारा बिजनेस रिस्क भी बढ़ा और फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारी KE इंक्रीज्ड फ्रॉम 11.5% टू 16%, जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है जिसने हमारे WACC को बढ़ा दिया। हाँ, हमारा चूंकि डेट का प्रोपोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब पहले अगर हम डेट इक्विटी रेशो देखें, डेट इक्विटी रेशो में पहले डेट थी 23.6 थी, राइट। जब हमने पहला पार्ट किया था, हमने गियरिंग निकाली थी, तो हमारी डेट थी 23.6। अब डेट कितनी है आप देखें, 34.8 डिवाइडेड बाय 82.8, इन दोनों को सम करें, 48 प्लस 34.8 इज 82.8। 82.8 का ये 34.8 कितना हिस्सा है? 34.8 डिवाइड बाय 82.8 इज 42%, राइट। और ये बन गया 58। तो हमारी डेट 23.6 से 42 हो गई। डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ, जिसने क्या किया होगा, चीपर कंपोनेंट का ये दो काम हुए। इसने WACC को डिक्रीज किया होगा, इसने WACC को इंक्रीज किया है। चूंकि ये इक्विटी बहरहाल एक कंपैरेटिवली हायर कंपोनेंट है और चूंकि चेंज यहाँ सिग्निफिकेंट है, इसकी वजह से आपको ओवरऑल WACC में 1% की, तकरीबन 1.1 या 1% की चेंज नज़र आ रही है। इसमें दोनों इम्पैक्ट्स हैं, इसमें KE की इंक्रीज़ का भी इम्पैक्ट है जिसने WACC को ऊपर पुल किया है, और उसमें डेट की नेचुरली हमारी चीपर कंपोनेंट के बढ़ने की वजह से उसने हमारे WACC को थोड़ा कम भी किया है। तो नेट इम्पैक्ट ये आया है कि इस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का, कि ओवरऑल इंक्रीज़। अदरवाइज़ अगर ये ना होता और सिर्फ इक्विटी चेंज हो जाती तो हमारा WACC और भी बढ़ जाता। इसने थोड़ा सा कंपनसेटिंग इम्पैक्ट क्रिएट किया है और हमारा WACC 9.6 से 10.66 तकरीबन 1% या 1.1% बढ़ा है। इज़ दैट राइट? तो यहाँ KE का जो इम्पैक्ट है वो रिलेटिवली डोमिनेंट है, जो कि नज़र भी आ रहा है क्योंकि इक्विटी प्रोपोर्शन में भी ज़्यादा है और यहाँ इंक्रीज़ भी अच्छी खासी है 11.5 से 16%। तो इतनी बात हमने लिखनी है। 3 मार्क्स का ये नन्ना सा ये भी पार्ट था। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स थे, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के।
और इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर APT किसी को क्लिक नहीं भी हुई एग्ज़ाम में तो भी APT की जो कैलकुलेशन थी वो एक छोटा सा पार्ट था 4 मार्क्स का, जिसमें CAPM भी था, APT भी थी। तो अगर आप देखें उसको, अगर हम इग्नोर भी करते हैं तो भी आप मटीरियली जो है ना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर भी सकते हैं। और APT जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है तो इसकी कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। सो विद दिस वी कंक्लूड क्वेश्चन 3। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ठीक है जी, यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन 3।